अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान जब दरिंदगी पर उतर आए तो वो दरिंदों से भी बदतर बन जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया मुरीदके के इलाका में, जहां पर एक शख्स 5 बच्चों की मां का आशिक बन गया, और क्योंकि वो औरत तलाक याफ्ता थी और वो शख्स चाहता था कि वो औरत उससे शादी कर ले, लेकिन उस औरत ने बार बार इस बात से इनकार किया। इस इनकार की वजह से उस जालिम शख्स ने उस औरत को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, और कत्ल भी इतने खौफनाक अंदाज में कि उस शख्स ने उस औरत की आंखें तक निकाल दी, बाजू काट डाले और गर्दन भी काट डाली। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। 5 बच्चों की मां को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था, लेकिन डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर मुरीदके थाने की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और उस शख्स को, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी है। अभी बात करते हैं उस मकतूला के वालिद से कि क्या मामलात थे, क्यों उस शख्स ने इतना जुल्म किया। सबसे पहले जी, हमें बड़ा अफसोस है आपकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ। कौन था ये बंदा, क्या मामला था, क्या हुआ जी? ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਫਿਰ? ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਸੀ। 5 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਖਾਵੰਦ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ? ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੀ ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਅੰਤਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਹ ਇਧਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਤਲਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ ਸੀ। ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, 20 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਗਈ? ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀ? ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਆਪੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ 2 ਨੋਟਿਸ ਘੱਲੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਘਰ ਵਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲਹਿਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲੀ? ਇਹ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ? ਬੱਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮਸਲਮ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। 15 ਸਾਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ। ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ 100 ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO थाना सिटी मुरीद के सलीम साहब के पास। उनसे हम बात करते हैं इस सारे केस के हवाले से। जी सलीम साहब, बताइएगा सारे वाक़े के हवाले से, कब इत्तला मिली, क्या हुआ इस लड़की के साथ, डिटेल से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये 28/12 का वक़ूआ है। 28/12 को एप्लीकेशन हमें मसूल हुई। ये तहमीना जो है ये मैरिड थी, इसके 5 बच्चे हैं, और इसका वालिद ने आके एप्लीकेशन दी, जिस पे हमने FIR रजिस्टर करके मौका पे गए। जब मौका पे गए तो ये खून में लथपथ पड़ी थी, इसका गला कटा हुआ था, हाथ के कलाई वगैरह कटी हुई थी। दोनों बाजू कटे हुए थे? एक कलाई, दाईं कलाई जो है इसकी कटी हुई थी। तो बहुत बुरी हालत थी।
ٹھیک ہے، لیکن وہ ایکسپائر ہو گئی تھی. اس کے علاوہ بلیڈنگ اس طرح کمرے میں پڑی تھی کہ جیسے بس نعوذ باللہ کچھ نہ پوچھیں. تو اس میں جب محلہ سے پتہ کیا تو ایک فیاض نامی ملزم تھا جس کا پتہ چلا کہ اس نے ہی یہ وقوع کیا ہے. اور اس کے بعد یہ تقریباً 4-5 دن پہلے بھی اس نے اٹیمپٹ کی تھی. ہوا یہ ہے کہ اس کے ہوں گے تمینہ کے کوئی ہوگی اس کے ساتھ واسلام، لیکن یہ زبردستی اس سے زیادتی کرنے کے لیے آیا تھا. 4-5 دن پہلے بھی اس نے اٹیمپٹ کی تھی، کیونکہ تمینہ کے ساتھ کچھ اس کی عزیز تھیں جو گھر میں اس دن آئی ہوئی تھی. یہ رات کے ٹائم جب اس نے دیوار سے انٹری ماری تو پھر انہوں نے عورتوں نے شور مچایا تو یہ بھاگ گیا. وقوع کی شب بھی ایسا ہی ہوا، یعنی کہ تہمینہ اسے نہیں ملتی تھی. تہمینہ یعنی کہ یہ شخص جو ہے مبینہ طور پر زبردستی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا تھا. زبردستی. جس دن قتل ہوا ہے تو ان کی کدو اطلاع ملی کی معاملہ ہے سی؟ یہ جی سانو شام نو اطلاع ملی. اچھا. ہاں ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚਲੀ گئی. جی جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹی ظاہر والد تو والد ہے، اس نے تو اپنی بیٹی کے انصاف کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور ہماری بھی گزارش ہے اعلیٰ افسران سے کہ اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہو اور اس ظالم شخص کو جس نے بے دردی سے قتل کیا ایک ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਿਆ ਧੌਣ ਕੱਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ. تفصیلاً دسو کہ کس طرح کی ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਿਆ ਧੌਣ ਵੀ ਕੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ. ایڈا ظالم جو بندہ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਰਿਆ. ਹਾਂਜੀ بازو لہدا کرتے تھے ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਲਮਕ ਗਏ. ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਮਾਰਿਆ. یہ جی ظلم کی انتہا ہے جی، اور ہم بھی گزارش کریں لگنا چاہیے جی انہیں اس بندے نے فائل لگنا چاہیے ساری تے گل یہ جی والد ہے ظاہر اللہ معافی دے. ہم سن کر کام اٹھے ہیں کہ جی اس ظالم نے مبینہ طور پر شاید پہلے اس نے دوستی کی، اس کو ورگلایا، جو بھی معاملات تھے، لیکن وہ زبردستی سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اس نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد پھر جیسے والد بتا رہے ہیں کہ اس کے بازو کاٹ ڈالے، گردن کاٹ دی، چہرہ کاٹ دیا، آنکھیں نکال دیں. اتنا وحشیانہ طریقے سے، اتنا غصہ تھا اس شخص کو کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا. بہرحال جی والد صاحب بھی یہی اپیل کر رہے ہیں اس لڑکی کے، اور ہم بھی یہی گزارش کریں گے کہ اس ظالم شخص کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزائے موت ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کر سکے. یہ 5 بچوں کی ماں تھی ایک عورت، اور اس کو ایک شخص نے اس بات پہ کہ جی زبردستی وہ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے انکار کیا. کیا وجہ بنی، کیا ہوا، لیکن اس نے جس طریقے سے اس عورت کو قتل کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا. شخص نے پہلے عورت کے بازو کاٹے ہیں، گردن کاٹی ہے، آنکھیں نکالی ہیں، منہ کٹ کر دیا سارا، اور اس کو مار کے تالا لگا کے وہ شخص چلا گیا یہاں سے. بہرحال بروقت کارروائی جو ہے پولیس نے کی اس کے خلاف، اور ابھی کوشش یہی ہے پولیس کی کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مقتولہ کے جو والد ہیں، ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، بلکہ بتا رہے تھے میں یہ کہ بھائیوں کی طرح ہیں یہ، اور ہمسائے بھی ہیں ان کے. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا، کیونکہ یہ شروع سے ہی اس خاندان کو، اس فیملی کو جانتے ہیں جن کی یہ بیٹی قتل ہوئی ہے بڑی بے رحمی سے. سر بتائیے گا کہ سارا معاملہ تھا کیا، اس سے پہلے جو لڑکی کو قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیے، اور پھر جو اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا وہ بھی بتائیے. سر کہ میرا نام رانا عباس ہے، میں عبدالحمید مقتولہ کا جو والد ہے اس کا دوست بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، ہمسایہ بھی ہوں، اور ہم یعنی کہ خاندان تو ایک دوسرے کے قریبی ہیں، جانتے ہیں. عبدالحمید صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، بیٹا بھی معذور ہے. دونوں بیٹیوں کی شادی کی ہوئی ہے. یہ جو بیٹی تخمینہ اس کا نام ہے، کاموکی میں ان کی آج سے 20 سال پہلے، تقریباً 20 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اس سے 5 بچے اللہ نے دیے ان کو، جن میں سے 2 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں. آج سے 2 سال قبل اس کی بیٹی کی طلاق ہو گئی کسی وجوہات کی بنا پہ. شادی کتنی عرصہ رہی؟
शादी तकरीबन 18-20 20 साल 18-20 साल रही। उसके बाद ये 2 साल से अपने इसके वालिद ने कहा कि बेटी कि किसी तरीके भी आप गुजारा करो, लेकिन बाप से ज़रा नाराज़ होके साइड पे रह रही थी, अलग रह रही थी, अकेले रह रही थी। एक बेटी इसके साथ रह रही थी, जो बड़ी बेटी है। मरने वाली बेटी की जो बेटी है ये इसके साथ रह रही। बड़ी बेटी इसके साथ थी और वो माँ थी, माँ बेटी थे बस। माँ बेटी थी, लेकिन बकाया 4 बच्चे अपने वालिद के पास थे कामोकी में। कामोकी में ये जो लड़का है जिसने कत्ल किया है, इसका नाम मोहम्मद फ़याद मुबारकाबाद का रहने वाला है। ये आवारागर्द और फाशा लड़का है। इसने उस लड़की को 2 साल से तंग कर रहा था, आना जाना ज़बरदस्ती, ये वो करना कि मेरे साथ शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन 27 तारीख की रात को ये आदमी फ़याज़ नामी तखमीना के घर गया, उनको कहा बड़ा पला जो भी कहना किया। उसके बाद इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ पे। ये दोनों ही थे वहाँ। जो बेटी की बेटी वो कहीं शादी पे गई हुई थी। तखमीना को अकेला देखकर उस आदमी ने उनके घर ज़बरदस्ती घुसकर आपस में उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, फिर उसको कत्ल किया है, उसका बाजू काटा है, उसकी शाहरग काट दी है, सब कुछ कर दिया। उसने कभी कंप्लेंट नहीं की उस लड़की ने कभी कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है या उस तरह ये का? उसे कत्ल की धमकियां देता था, डर जाती थी वो। तो वो डर जाती थी। बरोज़ वकूआ भी उसने मेन दरवाज़ा जो है उसको अंदर से ताला लगाया हुआ था, लेकिन ये दीवारें फलांग के रात को गया और ज़ाहिर जब उसने इनकार किया तो फिर इसने उसका मर्डर कर दिया। तो ये क्या था बच्चे के वालिद और लोग भी बता रहे हैं कि शायद वो दोस्ती तो थी, लेकिन अब वो कह रहा था कि मेरे साथ शादी करो। किस तरह का मामला था, या वैसे ही उसने गुस्से में आके कत्ल कर दिया उसे? नहीं, इसके चूँकि 5 बच्चे थे, ठीक है कि नहीं, ज़ाहिर है इसकी एक बेटी साथ रहती थी। उस दिन कुदरती नहीं थी, उसकी 14-15 साल उम्र है। जब औरत पे डिपेंड करता है, जब वो चाहती है कि मेरी बेटी जवान हो रही है, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले शोर से तो अलहदगी हो गई हुई थी ना, पहले शोहर से अलहदगी हो गई थी। बच्चे छोटे उसके पास है, बेटी की रहती थी बस। जी करेक्ट है सर। तो लेकिन वो आया ज़बरदस्ती। देखें, रात के टाइम अगर कोई वैसे आता है तो दिन के टाइम आता है, रात के अंधेरे में चोर ही आता है। तो फिर उसने ज़ाहिर है इसका मर्डर कर दिया। 28 तारीख की शाम को जब हमारी बेटी, जो उसकी बेटी की बेटी है, वो शादी पे गई हुई थी, वापस आई, उसने कहा आन के अपने नाना को कहा कि नाना जान, मामा का फ़ोन नहीं मिल रहा, बंद जा रहा है, दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है। नाना जान, मेरी अम्मी को कुछ हो गया है, मेरे साथ चलो। बाप की ममता, बाप की तरफ बाप का प्यार, इतना प्यार था कि जो बेटी को बुलाता नहीं था वो भाग के गया, हम सबको साथ लेके गया। जाके देखा है दरवाज़ा खड़काया, नहीं खुला। फिर एक आदमी अंदर गया। 28 तारीख की शाम तकरीबन 7 बजे अंदर देखा तो अंदर ताला लगाया हुआ, दरवाजे के नीचे से बाहर खून आ रहा है। फिर पुलिस को 15 पे कॉल की, लेकिन पुलिस आई। लेकिन माशाल्लाह हमें फ़ख्र है कि पंजाब पुलिस पे कि इन्होंने हमारे साथ इतनी हमदर्दी की, बर वक्त सारा काम किया। हमें ये कहा कि मैंने उनको बताया SHO साहब को कि ये इतने गरीब हैं। उन्होंने कहा आप फ़िक्र ना करें, लेकिन उन्होंने वाकई पंजाब पुलिस का रोल अदा किया। जिस टाइम पुलिस गई है, पुलिस ने दरवाज़ा खोला है, पुलिस ने दरवाज़ा खोल के ताला तोड़ा है, देखा तो अंदर उसकी गर्दन लटकी हुई है, बाजू लटका हुआ है। मैं साथ था, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है मौके की, अंदर खून ही खून था। SHO साहब ये सब परेशान हो गए थे कि इतना बहाना कत्ल था कि जो आदमी भी देखता था ना उसको बहुत ही बुरी हालत हो जाती थी। दरवाज़ा बंद किया फिर लेकिन लेबॉर्ट्री से कुछ लोगों को बुलाया गया, उन्होंने मौके की तस्वीरें वगैरह जो कुछ भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई थी की। कार्रवाई करने के बाद फिर
लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ इतना तामन किया कि रातों रात कि आगे 2 दिन हो चुके थे, फिर उन्होंने भर वक्त पोस्टमार्टम करवा के हमारे हवाले की लाश, फिर उसको अच्छा, दफनाया। ये जो लड़का है जिसने इतना जुल्म किया है, क्या मारने से पहले उसने उसके साथ ज्यादती की थी या वैसे गुस्से लेकिन में कत्ल सर कर की दिया? ये तो मेडिकल में पता लगेगा, पता लगेगा। लेकिन बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा था, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कौन है वो बंदा, मसलन क्यों इस हद तक चला गया? क्या उनकी दोस्ती हो गई थी आपस में दोनों की, क्योंकि अकेली लेकिन रहती थी? वो तकरीबन 1.5-2 साल से उसके पीछे लगा हुआ था, उसको तंग वगैरह भी करता था, मुख्तलिफ दोस्तों को लेके जाके पे तशद्दुद भी करता रहा है। थाने सदर में इस साडी बेटी ने जो कत्ल हो गई है, उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी है थाना सदर मरीदके में कि मेरे साथ फ़लाँ आदमी आके मुझे तंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर उन लोगों ने ये भी साथ था, फ़याज़, इसका नाम फ़याज़ उर्फ़ फौजी है, इसने फिर वो आदमी उदमी डाल डूल कर उनको मिन्नत तरला करके जैसे भी करके सुलह सफाई कर ली, लेकिन चंद दिन बाद ये काम कर लिया। वजह कत्ल करने की क्या बताता है वो बंदा? वजह कत्ल करने की कि वो कहता है कि मैं इसका आशिक था, ये मेरी बात नहीं मानती थी, तो इसी वजह से उसने, वो चाहता था शादी कर ले उससे। शादी कर ले। तो वो कहती थी कि आवारा आदमी है। दूसरा है कि ये बेटी की उम्र 38 साल है, उस फ़याज़ नामी शख्स की उम्र 22-23 साल है, वो तो उसके बेटों के बराबर है। यानी कि ये चाहता था कि उसे ज़बरदस्त शादी कर ले, उसने इनकार किया और उसने मार दिया। उसने मार दी, इतना बेरहमी से मारा है कि ये उसने इसलिए बेरहमी से मारा है कि खामन ने तो तलाक दे दी है, इसका मरने वाली का भाई मजदूर है, बाप कुछ करने जोगा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो अबाबील से हाथियों को मरवा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे इलाके में ये नहीं देखा जा रहा कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा शेर के साथ ही आपको मुखातब करूँगा, पंजाबी का, कहते ने कि तू आया से किहड़े कम लई ते करना की पिया, की मुँह जाके दसेंगा जदों आका ने पूछ लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जी बड़ा वो कहते हैं ना कि अंधोनाक वाक़या है जी। ज़बरदस्ती वो शख्स जो है एक औरत जो कि अलहदा हो चुकी थी अपने खावन से, लेकिन अपनी बेटी के साथ रहती थी, उसको एक तो परेशान करता था, फिर उसके साथ जुल्म करने की कोशिश करता था, फिर मुबैना तौर पर उसको ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की, वो इनकार किया उसने, तो उसने बड़ी बेरहमी से मार दिया। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होगी और उसको कानून के मुताबिक जो है जितना बड़ा उसने जुल्म किया है उसको उसकी एटलीस्ट सजाए मौत डेफिनेटली कानून के मुताबिक यही बनती है कि उसने कत्ल किया है। क्या पकड़ा गया शख्स क्या इंकशाफ किया, क्यों इतना गुस्से में आ गया, क्या वजह थी, किस तरह, क्यों उसने इतना उसकी बाजू काट दी, आंखें निकाल दी, क्या क्यों इस तरह किया, उसका क्या कहता? मैंने उसको इंटरोगेट किया, वो बता रहा था कि इसमें जो है चूँकि ये इनकार करती थी तो मैंने इसे बड़ी मिन्नत से मदद की, पहले भी कोशिश की, अब ये जो है ना मुझे मिल नहीं रही थी, ठीक है, बस इसका यही बहाना था कि मेरी बेटी जवान है, बच्चे हैं मेरे, तो मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन ये ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, उसी वजह से उसने उसको कत्ल कर इसी दिया। वजह से उसने मर्डर। तो ये कत्ल के कितने अरसे बाद पकड़ा गया ये शख्स? राउंड अबाउट 1 आध दिन बाद। बस ये है। तो अभी ये कि कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जितनी भी एविडेंस मौजूद है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इस शख्स को। इंशाल्लाह 100%। बिल्कुल सही है जी। डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर एसएचओ थाना सिटी मुरीद के सलीम और उनकी टीम ने जो है उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ एविडेंस जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और इंटेरोगेशन जो मेरिट पर होगी और जिस जालमाना तरीके से उस औरत को कत्ल किया गया है उस चीज़ का हिसाब डेफिनेटली उससे लिया जाएगा कि उसके बाजू काटे उसने, उसकी आंख निकाली, उसका चेहरा काट दिया, गर्दन काट दी। वजह सिर्फ ये थी कि मुबैना तौर पर वो हो सकता है शायद वो गलत तल्कात से ज़बरदस्ती बनाता हो, फिर उसके बाद उसको डराता धमकाता हो, उसके बाद अब वो शख्स चाहता था कि वो उससे शादी कर ले,
गो कि वो औरत इनकार करती थी कि मेरी बेटी 14-15 साल की मेरे साथ रहती है, मैं शादी नहीं करूंगी, और इसी गुस्से की वजह से उस शख्स ने उस औरत को कत्ल कर दिया। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि उस जालिम शख्स को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। डिटेल बता रहे थे इसी बच्चों के बारे में, इसके वैसे जो पुरानी ज़िंदगी गुजरी है बच्ची के उस हवाले से, वो ज़रा बताइएगा। सर के बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है कि इस बच्ची की वालदा फौत हो चुकी थी, सिर्फ उनका एक वालिद और एक भाई ही था। भाई मज़दूर है, वालिद जो है कि सारा दिन मजदूरी करता है, 1000 रुपया लेके आता है। वो 1000 रुपये में बेटे को खिलाए कि आप खाए। इतने गरीब हैं कि जिस दिन इनकी दिहाड़ी नहीं लगती, किसी जगह पे मजदूरी नहीं मिलती, उस दिन ये बाप बेटे भूखे रहते हैं। बाप बेटे भूखे रहते हैं। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब आगे अपील है कि उन्होंने कहा था कि औरत को तोहफ़्ज़ देंगे, लेकिन हमारी भरपूर उनसे गुजारिश है कि इस गरीब ख़ानदान को हर तरीके की मदद चाहिए। बिल्कुल सही, हमारी भी एक गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से। गरीब ये लोग हैं, बड़ा जुल्म हुआ उस लड़की के साथ। गरीब वालिद जो है बेचारा बता नहीं सका अपने साथ, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, उसकी बेटी के साथ जो जुल्म हुआ है। तो हम यही एक, जैसे कि उन्होंने तारीफ़ भी कर दी पुलिस की, DPO शेखुपुरा के अहकामात पर शेखुपुरा पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने और स्पेशली मरीदके थाना की जो पुलिस है, उन्होंने कार्रवाई की उस शख्स के ख़िलाफ़, और इंसाफ जो है हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि उस शख्स को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाएगा और इस गरीब ख़ानदान की जो है वो मदद भी होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।